হ্যালো বন্ধুরা, নমস্কার। দেখো নিয়ে নিয়েছে একটা মোচা, তো এখন কাটবো আমি মোচা। তো চলো, ভাবলাম যখন মোচাটা কাটবোই তখন তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি। প্রথমে আমি মোচার ফুলগুলো বের করে নিচ্ছি। আমি একটু কাজগুলো সাথে সাথে করে নিতে পছন্দ করি। তোমরা ভাবছো খাটের উপর বসে পড়েছি কেন? খাটের উপর বসে পড়েছি কারণ রান্নাঘরে প্রচণ্ড পরিমাণ গরম। এই যে খাটের উপর আমি এইটা চালের একটা বড় প্যাকেট নিয়েছি, ওটা বিছিয়ে বসে পড়েছি। তো মোচাটা কাটছি, তোমাদের মোচা কাটাটা দেখাচ্ছি। মোচা কাটতে না অনেকেই পছন্দ করে না। কাটা মোচা আজকাল বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলোতে না সব কিছু ছাড়ানো থাকে না, মোটামুটি করে কেটে দেয়। তো আগে আমি ফুলগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে প্যাকেটের মধ্যে এগুলো মানে পাতাগুলো ফেলে জায়গাটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিই, দেন তোমাদের আমি মোচাটা কাটা দেখাচ্ছি। কাটবো না, মানে আমি ছোলাটা পর্যন্ত দেখাচ্ছি। কাটাটা যেদিন রান্না করব মোচা, সেদিনকে তোমাদের সাথে শেয়ার করবো, কারণ নইলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে। এটাকে ভেঙে নিচ্ছি কারণ জায়গাটা আমাকে পরিষ্কার রাখতে হবে। তো চলুন, আর কাটবো না, মানে আর ছিঁড়বো না। আমি একটু গুছিয়ে কাজ করতে পছন্দ করি, ছড়িয়ে ছিটিয়ে মানে চারিপাশে ছড়িয়ে খোসা মোসা ফেলে। দেখবেন আমি মোচাটা খুব সুন্দর করে কাটবো এবং প্যাকেটে ময়লাগুলো ভরবো। তো আপনারাও পারলে এরকমভাবে কাজ করুন, দেখবেন কাজের হ্যাপা খুব কম থাকবে, গায়ে লাগবে না। তো দেখুন, এই মোচাটা পর্যন্ত আমি ছাড়িয়ে নিলাম, আর এখান থেকে আমি এমনি কেটে নেব। তো দেখো বন্ধুরা, এই হলো আমার মোচা। এবার এগুলোকে আমি ছাড়িয়ে নেব। এই যে এরকম যদি থাকে একবারে ধরে, এই যে এইটা না বাইরে থেকে মোচা কিনলে ফেলে না অনেক সময়। তো এইভাবে ধরে এইভাবে বের করে নিলেই মোচার এটা ফটাফট হয়ে যায়। আগে আমি এগুলো ছিঁড়ে নিই, ছিঁড়লে এগুলো বেরিয়ে যাবে তাড়াতাড়ি করে। দেন এগুলো এই যে আমি একবারে প্যাকেটে ভরে দিচ্ছি, যাতে পরে অসুবিধা না হয়। এই দুটো পার্টস মোচার থেকে বাদ যাবে। এই যে ফুলের মতো পার্টস আর এই যে সাথেই পার্টস, এই দুটো পার্টস মোচার থেকে বাদ যায়। এই দুটোতেই পেটটা খারাপ হয়, তো ফটাফট করতে হবে। তো বন্ধুরা, মোচা কাটতে কাটতে চলো তোমাদের সাথে একটুখানি গল্প করে নিই। তো তোমরা কেমন আছো সেটা সবাই বলো আগে। আশা করি ভালোই আছো। তোমাদের মোচা খেতে কেমন লাগে? আমার তো মোচা খেতে হেভি লাগে। আগে ভালো লাগতো না, তারপরে আমি একজনের থেকে পেঁয়াজের মোচা মানে আমিষ মোচা করাটা শিখেছি। আমিষ মোচা তো আগে শিখিনি, কারণ আগে দেখতাম যে ছোলা দিয়ে মোচা করা হতো, বাট পেঁয়াজ রসুন দিয়ে ঘি গরম মশলা দিয়ে মোচা একবার করে খেয়ে দেখবেন, অসাধারণ লাগে। তো আজকে আমি দেখো একটা কোটা শাড়ি পরে নিয়েছি। আমার শাড়িটা কেমন লাগছে সেটা তোমরা বলো দেখতে। এই মোচা কাটা না সত্যি প্রচণ্ড মানে ইয়ের ব্যাপার। তা
तकलीफ देने वाली काम है। কখনো কখনো অরিজিনাল মোচাটা এখানে ফেলে দিই, আবার কখনো এই যেই ফুল আছে একসাথে এইভাবে ছিঁড়ে নিয়ে একবারে বের হয়ে গেল। আমি এভাবেই কাটি। बताओ तुम कौन हो, ला 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 ला। तू मेरा जान है, तू मेरा दिलबर है, तेरी प्रेम कहानी का, मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो ज़ीरो है, हाँ ज़ीरो है। सच में मेरे प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर ना मेरी तकदीर एकदम ज़ीरो है, क्योंकि मेरे बापू ने यानी कि मेरे डैड ने मेरी शादी करवा दी मेरी 21 साल में, 20-21 साल के बीच में। और मेरे से मेरे पति कितना साल की उम्र की बड़े हैं पता है? 16 साल की बड़ी है। तो तब का तो ऐसा ही चलता था। बापू के मुंह के ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते थे, पर हम शादी भी नहीं करना चाहते थे। पर शादी किया, अच्छा हुआ, लड़का हो गया, लड़की हो गई। पर मैं बोलूँ आजकल सब लड़की या लड़के लोगों को खुद इस्टेब्लिश ना होकर शादी मत करो, और अगर शादी कर लोगे तो साथ साथ बच्चे पैदा मत करो। क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप को 3 या 4 साल देख लो, 5 साल देखोगे तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसके अंदर अभी बहुत सारे डिवोर्स केस हो रहा है। और अभी तो सब मैच्योर है और सब काम में लगे रहते हैं, स्वनिर्भर है। तो इसीलिए सब लोग पति सोचते हैं मैं तो कमाती हूँ, मैं क्यों पत्नी का कहना मानूँ। पत्नी सोचता है मैं भी तो कमाती हूँ, मैं क्यों इसका सोच मानूँ। मैं भी तो काम में जाती हूँ, मैं थका हारती हूँ, मैं क्यों कुकिंग करूँ, मैं क्यों बच्चे को संभालूँ, मैं क्यों पैदा करूँ। ऐसे ऐसे बहुत सारे सोच आते हैं। ये सही सोच है कि नहीं, ये ठीक है कि नहीं, सोच मेरे को बताओ। अभी की दुनिया में यही सोच से चल रहा है। देखिए कोई शादी कर रहा है तो बच्चे नहीं लेना चाहते, अगर बच्चे ले रहा है तो सरोगेसी कर रहा है, क्योंकि खुद का फिगर नहीं, वो खुद को तकलीफ़ नहीं देना चाहते। क्योंकि एक क्या बोलूँ, साइकोलॉजी प्ले करता है, हम क्यों हमारा फिगर को बर्बाद करें, हम क्यों कष्ट उठाएं। मेरे पति क्या उठाते हैं, मेरे लवर क्या उठाते हैं, वो लड़के क्या उठाते हैं जो मेरे जीवन साथी है, तो मैं क्यों उठाऊंगी। अगर सरोगेसी है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो चलो सरोगेसी ही कर लो। और किसी किसी का बहुत सारा प्रॉब्लम भी होता है, इसलिए सरोगेसी करता है। तो सरोगेसी कोई बुरा काम नहीं या कोई गलत काम नहीं, ये अच्छी बात है, इसमें कोई गलत तरीका भी नहीं होता है। तो सरोगेसी में जो बच्चा पैदा होता है खुद का ही होता है, तो कोई बात नहीं। पर यही प्रॉब्लम होता है, आजकल कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इसीलिए मैं जो जीवन में फेस करके आई हूँ ना, जो 21 साल में मेरी शादी करवा दिया गया, 16 साल उम्र की बड़े पति है, मेरे 1 ही साल के अंदर बच्चे पैदा हो गया, फर्स्ट बेबी। मेरा जो पहला एनिवर्सरी था वो बेबी को गोद में लेकर था, क्योंकि मेरे पहले ही मंथ में प्रेग्नेंट हो गई मैं। तो ऐसे काम कभी भी मत करो। देखो मैं जॉब करती थी, ये बच्चे लोगों के लिए मुझे दो जॉब छोड़ना पड़ा। मैं इवेंट में काम करती थी, मुझे इवेंट जाना भी बंद करना पड़ा ये बच्चे लोगों को संभालने के लिए, क्योंकि मेरे पास बच्चे आगे, घर आगे है, वो बाद में है। तो हाँ, मैं वीडियो बनाती हूँ क्योंकि ये घर बैठे हम बना सकते हैं, ये मेरी
पैशन बोलो या इसमें मेरे वीडियो बनाने के लिए मुझे कभी किसी दिन धकेला गया बोलो, किसी तरीके से ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया गया, ये भी बोल सकते हो। तो अगर मैं इस वीडियो में वीडियो बनाने के लिए आ ही गई हूँ तो मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, आप लोगों से शेयर करना भी अच्छा लगता है। तो ये गया मेरा लड़के लड़की का बात। तो मेरा इवेंट का काम भी छोड़ दी मैंने। मेरी जो जॉब में थी, जॉब में अच्छी खासी सैलरी मुझे मिलती थी, पर मेरे लड़के के लिए मुझे ये छोड़ना पड़ा क्योंकि वो छोटा बच्चा था। और मुझे मेरे को जब शादी हुआ था, मैं तब भी रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी एक बड़े से मेडिकल सेंटर में। वो भी मुझे शादी के कारण छोड़ना पड़ा। बोलो तो मेरा करियर शादी के लिए एकदम बर्बाद हो गया। तो आप लोग ऐसे काम कभी भी मत करना। ये शादी के लिए कभी भी अपने खुद का करियर को बर्बाद मत करो। शादी करो खुद एस्टेब्लिश होके करो। मैं लड़की लोगों को बोलती हूँ, शादी अगर करना है खुद एस्टेब्लिश होके शादी करो। और शादी के अगर बच्चे लेने हो, अगर सर्कमटेंस देखो, खुद के 4-5 को देखो। अगर बच्चे लेना है तो आप करियर को आगे बढ़ा पाओगे कि नहीं। अगर ठीक से बढ़ा पाओगे तो भी बच्चे लो, पर बच्चों को जन्म देकर उसको कष्ट में मत रखो। तो यही है, मैं यही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो फेस करके आई हूँ मैं वही बताना चाहती हूँ आप लोगों से। तो अभी तो ये मेरे को मैं आपको बोल के क्या करूँगी। मैं मेरे लड़की को यही बोलती हूँ, तो खुद आगे पहले खुद की पैर में खड़े हो जा, फिर शादी के बाद हम करेंगे। नहीं, शादी नहीं होंगे तो भी अच्छा है, पर खुद का पैर में खड़े होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे बापू ऐसे थे, बाबा और मोमो डैड ऐसे थे कि अगर लड़की घर में रह जाए तो कितनी गंदगी की बात है, कितनी बुरी बात है। उन लोगों को घर में क्यों बिठाएं, ये हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, हम कैसे कहाँ मुंह छुपाते फिरेंगे। अभी मेरे बाबा तो स्वर्गवासी हो गए, मेरे पिता को 2013 में गुजर गए। तो अभी मैं मेरे बाबा को पूछना चाहती हूँ, अभी मैं जब तकलीफ़ में रहती हूँ, मेरे रिलेटिव्स लोग क्या मुझे देखने के लिए आते हैं? मेरे रिलेटिव्स लोग क्या मेरे पास मेरे बगल में खड़े होते हैं? मेरे रिलेटिव्स लोग क्या मेरे बच्चे को 2 बूंद पानी भी डालते हैं, खिलाते हैं? मेरे पड़ोसी वो भी क्या डालने को आते हैं 2 बूंद पानी? अगर किसी से कुछ बोलने जाओ या कुछ बताने जाओ या कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ मांगने जाओ, एक दिन ही वो आपके पास आएंगे, बाद में नहीं आएंगे। फिर भी पड़ोसी तो बहुत अच्छे हैं रिलेटिव्स के आगे। रिलेटिव्स लोग एकदम बुरी है, क्योंकि जो खुद का अपना है ना, वो अपनों के पीछे अपनों ही छोड़ा भोगते हैं। जो खुद का अपना है वो अपनों के पीछे ही खुद अपने छोड़ा भोगते हैं। क्योंकि मेरे दीदी का भी शादी हो गए थे, उसका भी 20 साल में शादी हो गए थे, और उसका शादी में बहुत रुपये ले गए थे। मेरे दीदी की शादी में डाउरी जो सिस्टम होते हैं, वो डाउरी वगैरह मैं नहीं बोलूँगी, जो होते थे उससे उसका शादी हुआ था। क्योंकि उसका जो है ना स्किन टोन ब्लैकिश थे। मैं क्योंकि यही शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे अपने ही मेरे पीछे छोड़ा भोगते हैं, इसलिए मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ। ये लोग करते हैं क्या, ये पैसे हैं ना इनके पास, इतनी ये पैसे देकर सब पड़ोसी बोलो, सब रिलेटिव्स बोलो, सबको खरीद लेते हैं, और खरीद लेके खुद को बॉस मान जाते हैं, बॉस मान लेते हैं। अरे खुद का माता पिता भी बिक जाते हैं इसके आगे, बच्चों के आगे ना खुद का माता पिता भी बिक जाते हैं। अगर आपके पास 3-4 बच्चे हो, एक मम्मी डैडी के 3-4 बच्चे हो, जो बच्चे थोड़ा वीक हो, मम्मी डैडी उसे नहीं देखते। जो बच्चे रेगुलर उसको टेक केयर करते हो, मम्मी डैडी उसको भाव भी नहीं देते हैं। जो बच्चे उसको साल में एक बार आके या 6 महीने में एक बार आके ठोस के
चीज़ें दे जाते हैं, पैसा दे जाते हैं, सब उनको ही पूछते हैं, क्योंकि रुपया बात करती है, रुपया बोलती है। क्योंकि दुनिया में रुपया सबसे बड़ा चीज़ है। जिसके पास रुपया है वो किसी को नहीं मानते। वो जैसे भी करके आप कमाओ। जो मेरे मॉम डैड को जिसने मुंह में जिप डाला ना, उसके पास भी बहुत सारा रुपया है। अब ये रुपया कहाँ से आया, कैसे हुआ इतना सारा रुपया, ये तो दूर की बात है, पर उसके पास रुपया है इसीलिए वो खुश है। इसके आगे सब रिलेटिव्स भी झुक जाते हैं। वो सच झूठ क्या है वो उसको नहीं देखते, वो ओनली रुपया पैसा को देखते हैं। और पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी भी, अगर पड़ोसी के घर पे जाकर आप 2-3-4 बॉक्स मिठाई दे जाते हो, 2-3-4 सब्जियां दे आते हो, कुछ अगर कोई गुजर जाए, अगर किसी का बर्थडे हो, बड़ा बड़ा गिफ्ट लेके जाते हो, कुछ रुपया पैसा डाल देते हो, तो उसका तो बात ही नहीं। आप अगर किसी का मर्डर भी कर दे तो आपके पीछे वो खड़े रहेंगे, क्योंकि रुपया बोलती है। तो इसीलिए दोस्तों, रुपया ही सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में। अगर खुद बिंदास होके जीना चाहते हो तो खुद अपने कैरियर को देखो, कैरियर बनाओ। कैरियर के पीछे, शादी के पीछे मत भागो, कैरियर के पीछे भागो। ये मैं सब लड़की लोगों को इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी धोखा हुई है। मैं कभी भी मेरी बात नहीं सामने लाना चाहती हूँ, पर अभी मैं थोड़ी थोड़ी लाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ी धोखा हुई है, मेरे साथ बहुत बड़ी बुरी हुई चीज़ हुई है। इसीलिए क्योंकि और एक बात, जो घर के बड़े बच्चे होते हैं ना, कभी कभी किसी किसी घर में वो बड़े बच्चे पूरे संसार को उठा लेती है, संसार का बोझ। और किसी किसी घर में जो बड़े बच्चे होते हैं ना, वो एकदम ऐसा होते हैं, ऐसे ऐसे डस लेते हैं सबको। रुपया बोलो, पैसा बोलो, सब चीज़ों में उसका बढ़ोतरी होती है। मॉम डैड से वो ज़्यादा ले लेती है, क्योंकि वो बड़े हैं, वो पहले पैदा हुई है। जो भी बोलो, उसका बच्चे बोलो, उसका पति बोलो, उसका सरकमटेंस बोलो, उसके समय सोचो, उसके टाइम में जो बड़े होते हैं, उसके टाइम में माता पिता का एज बहुत कम होते हैं, और जो छोटे हैं उसके टाइम में माता पिता का एज बहुत बढ़ जाता है। तो कुछ काम करने लायक, कि कोई हेल्प करने लायक माता पिता नहीं है, कोई रिटायर कर जाते हैं, कोई बीमार पड़ जाता है। तो इसीलिए जो छोटे हैं घर के, उसी टाइम हेल्प नहीं कर सकते माता पिता चाह कर, और जो बड़े होते हैं वो हेल्प ही हेल्प ले जाते हैं। और कई कई घर में बड़े जो औलाद होते हैं वो इतने अच्छे होते, इतने अच्छे होते, पूरे घर को संभाल लेते हैं। तो मेरा तो ऐसा भाग नहीं है। मेरे घर के जो बड़े हैं वो ऐसा नहीं है। मेरे घर के जो बड़े हैं वो तो, और क्या बोलूँ, जैसे मैं बोली हूँ, मैं बहुत धोखा खाई हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ झेली हूँ और झेल रही हूँ। मेरे मम्मी का केयर टेकर बन के मैं रह गई हूँ। जब मेरे पापा बीमार पड़ी थी, तब मेरे पापा मेरे को मेरे पापा के घर में लाई थी। मेरे पापा खुद ले आए थे, क्योंकि उसको देखभाल के लिए कोई नहीं थे। तब उसके देखभाल के लिए मैं केयर टेकर वो जो बन गई थी, अभी तक मैं केयर टेकर ही रह गई बन के। पर मेरा कोई वैल्यू नहीं है फैमिली में, मेरा संसार में कोई वैल्यू नहीं है, मेरे पड़ोसी के पास मेरा कोई वैल्यू नहीं है। मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो दिमाग से कुछ माइनस से चलती है, जिसका सोच गलत है। तो उसको, उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आप पैसों के पीछे मत भागो, खुद का पैसा को लेकर शांति से रहो। वो पैसों के पीछे भाग के किसी के ऊपर दोष मत ठोको, किसी को जज मत करो। ये मैं रिलेटिव्स लोगों को बोलती हूँ। और जो फेसबुक में पोस्ट देते हो ना, मैं मेरे दीदा के लिए ऐसी करती हूँ, मैं मेरे मॉम के लिए ऐसी करती हूँ। कोई गुजर जाता है तो उसके बड़े बड़े पिक्चर फादर्स डे, मदर्स डे में ठोस देते हो फेसबुक में,
ऐसे मत करो यार, जब वो जिंदा होते उसके लिए कुछ करो, तब तो नहीं करते हो। जब वो गुजर जाते तब उसके फोटोज़ लगाते हो, उसके फोटोज़ में माला चढ़ाते हो, फिर फेसबुक में बड़े बड़े पोस्ट देते हो, फादर्स डे मदर्स डे में मनाते हो। फिर फादर मदर को कितने देखते हो आप लोग, कितने दिन तक देखे हो। मैंने ऐसा भी मेरे फादर जब बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, मेरे फादर के खुद का अपना खून का चीज़ ऐसे बोला। अब जो बीमार पड़ा है ना फादर, उसको गुजर जाना ही अच्छा है। ऐसे बीमारी लेकर जी के वो क्या करे, कोई बोल सकता है क्या? कोई दुश्मन भी बोल सकता है क्या ऐसे? पर बोला गया। मेरे फादर का जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम हुए। मेरे फादर जब बीमार थे, हमारा जो फादर का प्रॉपर्टी है उसको लेकर उसको हॉस्पिटल में ताना दिया गया। कौन दिया ये मैं नहीं बताऊंगी, पर वो ताने से मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज हुई है बार बार। लास्ट में जब उसका सीटी स्कैन किया गया था ना, ब्रेन में बहुत सारे क्लॉट थे। और मेरे फादर्स का लास्ट वर्ड थे, वो एक इडियट है। ये हमारे सामने मेरे मौसी के सामने उसको नाम लेकर बोला गया, वो एक इडियट है। क्यों बोले मेरे फादर ने? कुछ तो कारण होंगे। अरे हम लोगों को बोलते हैं, हम लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं भाई, हम लोग तो ऐसे वीडियोस बनाते हैं, हम लोग ओपनली वीडियोस बनाते हैं सबके सामने। मैं जो हूँ यही हूँ, सबके सामने हूँ। और जो नाइट में जब शादी भी नहीं हुई है, झील के किनारे रात 10 बजे कोई लड़के के साथ खड़े रहे तो उसका कोई गलती नहीं है। एक अकेली लड़की, कुंवारी लड़की 11-12 में पढ़ रही है, वो झील के आगे एक लड़के को लेकर रात 10 बजे खड़े होकर क्या कर रहे थे? मैंने देखा, हमारा दोस्त ने देखा, हमारे जो घर में आकर सोजा ऊपर उठ जाते थे लड़के को लेकर, वो क्या करते थे? अकेले फ्लैट में रहकर भी लड़की लोग क्या करते हैं? जो रिलेशनशिप में होते हैं कुछ भी नहीं करते क्या? तो उसका तो हम देख ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो सोशल मीडिया में नहीं है। जो हम नहीं देख सकते उसके लिए हम नहीं बोल सकते। हम लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं, जो मैं हूँ वो मैं हूँ, ऐसे हूँ। और वो लोग जो मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ। अंदर से मैं कुछ हूँ और बाहर से मैं बहुत अच्छी हूँ, ऐसे ही। तो ऐसे लोगों से ना आप लोग दूर ही रहो। हम सोचते हैं, हम लोग जो करते हैं वो दिखाने का हिम्मत रखते हैं। हम ये मोचा काट रहे, कले का फूल कट रहे हैं, छिल रहे हैं, ये हम करते हैं। ये साड़ी पहनी हूँ, साड़ी पहन के कट रही हूँ, हम इसमें भी दोष आ जाएंगे। क्यों? साड़ी पहन के देखो, बंधन के बैठी है केले का फूल काटने के लिए, इसमें भी चर्चे आ जाएंगे। अरे भाई, खुद के ऊपर झांक कर देखो, तुम कितने दिन बिता के आए हो लड़के लोगों के साथ, जो बोलते हो इसी तरह की बातें। तुम कई लड़के ऐसे होते, इतना बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान दे जाते हैं, खुद अपने बीवी को छोड़कर दूसरों के बीवी के साथ, खुद के बीवी के सामने दूसरे घर में रहते थे। उसके बच्चे लोग देखते भी थे। एक माँ, खुद की माँ रहते भी हुए भी बाबा दूसरे लड़की के साथ रह रही है, पर क्या हुआ? वो लड़की उसको छोड़कर चले गए। वही बीवी ही काम है ना, वही बीवी ही काम है। वो दोष देता है दूसरे लोगों को। ऐसा क्यों? पहले खुद को देखो, फिर दूसरों को जांच करो। मैंने जो बात बोल रही हूँ, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। आप लोगों को थोड़ा तकलीफ होंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये बंगाली लोग, हिंदी लोग, सब लोग सुने समझे, क्योंकि मैं लड़की लोगों को ऐसे एक मैसेज देना चाहती हूँ। जो लड़की लोग, पहला नंबर मैसेज, लड़की लोग खुद के करियर पे ध्यान दो,
पढ़ाई करो, काम करो, करियर फर्स्ट है, देन शादी है, शादी पे मत जाओ, शादी अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अकेले जीना सीखो। बहुत लोगों को ऐसे होता है जो शादी होते हुए भी शादी तोड़ जाते, डिवोर्स हो जाते, फिर वो अकेले ही रहते। तो मैं पहले से क्यों नहीं अकेले रहूंगी, मैं अकेले ही रहूंगी, खुद कमाऊंगी, खुद मालिक बनूंगी, खुद अकेले रहूंगी। तो अगर अच्छे घर मिल जाए, अच्छे लड़का मिल जाए तो शादी कर लो, नहीं तो बुरे लड़कों के पीछे मत भागो, बुरे लड़की के पीछे भी मत भागो। खुद के करियर पे फर्स्ट ध्यान दो, फिर ध्यान दो, किसी के बातों में मत जाओ। खुद का दिल जो बोलता है हाँ ये ठीक है, उसमें जाओ। अगर दूसरों की बातों में जाओगे ना, कोई तरक्की नहीं आप कर पाओगे। और छोटी उम्र में, एकदम छोटी उम्र में शादी मत करो। इसमें किसी का बच्चे हो जाता है, ये अच्छी ठीक बात नहीं है। इतनी छोटी उम्र में 18 ईयर्स से पहले शादी करना, कोई लव के अंदर रहते हुए शादी कर लेते हैं, पर ये बात तो ठीक नहीं है। और एक बहुत बड़ी चीज़ है, खुद की सुरक्षा खुद करना सीखो। हाँ, खुद की सुरक्षा खुद करना सीखो। हर लड़की को कैराटे सीखना चाहिए, और अगर कैराटे नहीं भी सीखो तो कुछ ना कुछ दांव पैच सीखो, जिससे आप दूसरे आदमियों से, दूसरे लड़कों से, या जो आपको अटैक करे उससे बच जाओ। खुद के पास पेपर स्प्रे रखो। हर एक लड़की को खुद का सुरक्षा खुद करना चाहिए, तो इसीलिए सुरक्षा के लिए बैग में सुरक्षा की चीज़ रखना पड़ता है। क्या क्या रखना पड़ेगा मैं बोलूँगी। हाँ, कोई स्टील वाला आप कम रखो, एक पेपर स्प्रे रखो, बॉडी स्प्रे रखो, लाल मिर्च का स्प्रे रखो। ये स्प्रे कैसे बनाओगे आप, आजकल तो बहुत सारे स्प्रे बॉटल आ जाते हैं, उसके अंदर लाल मिर्च डालो, हरा मिर्च का पेस्ट डालो और वाटर मिला के शेक कर लो। गंदगी हो जाए, गंद भी हो जाए, पर वो काम करेगा। शेक कर लो, वो बैग के अंदर रखो। अगर कोई आए तो उसके आँख में डालो, और अपने पैर का जो घुटना है उसको चलाना सीखो। हर वक्त घर में प्रैक्टिस कर लो घुटने को चलाना। सब लोग बोलोगे तो ये बतेला मार रहा है, ये क्या क्या बात बोल रहा है। जो बोले, मैं यही देखी हूँ दुनिया में, जितने दिन तक मैं रही हूँ। एक तो खुद का कमाई खुद करना चाहिए, खुद को सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए। सेल्फ डिपेंड बनना बहुत ज़रूरी है, और खुद का सुरक्षा खुद करना चाहिए। किसी के ऊपर भरोसा मत करो, आप खुद ही अपनों के भरोसे हो, आप खुद ही अपनों की सुरक्षा हो। खुद का काम खुद करो, और खुद का करियर खुद बनाओ, और खुद को, फैमिली को खुद सहारा दो, और खुद को भी खुद सहारा दो। आप भी आपका सहारा हो। तो चलिए दोस्तों, हमारा तो आज बहुत कुछ दिल का बात बोल गई आप लोगों से। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। मैं जो रेगुलर वाला डिशेस हम बनाते हैं वो आप लोगों से हम शेयर करते, क्योंकि देखिए मैं ना घर में खाना नहीं पकाती हूँ। मेरे को ये आते हैं, होम डिलीवरी आते हैं। अगर कभी कुछ खाना एक्स्ट्रा बनाती हूँ तो आप लोगों से ऑब्वियसली शेयर कर देती हूँ। तो ये मोचा बोलते हैं हम लोगों को बंगाली में, जो केले का फूल होता है। इसका वीडियोस मैं आप लोगों से इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मोचा अलग तरीके से बंगाली लोग बनाते हैं। ये चिंगड़ी मछली ये पॉन देकर भी बनाते हैं, और निरामिष मोचा ही ज़्यादा बनाते हैं। तो हमको निरामिष मोचा, हमको या हमारे लड़के लड़की को, कुछ किसी के घर वाले को, किसी को भी जो निरामिष वाला मोचा है, जो वेज मोचा है, ये पसंद नहीं है। तो नॉनवेज मोचा जो ऑनियन गार्लिक जो देकर बनाते हैं वही पसंद है। तो यही मैं आप लोगों से शेयर करूँगी मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए, यही तक है। मैं काटना भी आप लोगों से शेयर कर दूंगी। मैं कैसे आज चॉपर से मैं ये केले को फूल को काटूंगी, ट्राई करूंगी।